जय जगन्नाथ मैडम। मैम आपण म्यूट रे अछंती। थैंक यू। जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आज अशोकाष्टमी आज पुण्य दिवस रे मु समस्त को शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँगी। आज आम 91 आम 91तम वेबिनार ऑन लाइफ आरंभ करने को जाऊे। So it's my unique privilege to welcome and invite all of you to this Google board and welcome you to this Google board. नीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तम् अवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सृजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक कोटि कोटि ओडियांकर हृदय आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथ चरण कमल तरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। एकानबेतम जातीय स्तरीय आभासी आलोचन एक बिंदुर जोग देथिबा समस्त दर्शक मानक प्रणाम नमस्कार एवं शुभ संध्या। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस वेबिनार, एस्टीम्ड पैट्रन डॉक्टर केपी मिश्रा, द स्टेट चीफ कमिश्नर एंड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, रेवर्ड मिस्टर पंचानन साहू, the retired bank officer and the chief speaker of today's evening, respected Professor Rajesh Kumar Singh and the other members from different states and all the viewers and media personalities, student volunteers, professors from different ranks, from different corners of Odisha and outside Odisha. I welcome you all to this Google Pod. Today, Ramcharitmanas, and the main subject is today Lankakan and Uttarakhand. In these two chapters, as we all know, these two are the last two part of our Sri Ramcharitmanas, where we'll see in Lankakan we'll have the Setu Panth, that bridge, and the Angad Ravan, the talk over with Angad and Ravan. Then we'll have the war between Lakshman and Meghnad, and we'll have Siram talk with different types of peoples, how to manage the entire show. Then Kumbhakarn was come to an end with the life of Kumbhakarn, Meghnad, and there is a fight with Ram and Ravan, and there is also a Sita has to give a big exam how to enter. Then all of them left for Ajodhya. That is the end of Lankakan. Then in Uttarakhand we'll have Bharat Hanuman. They will close friend to each other. Then Bharat was very much happy with Ram, and Ramji, he is having Rajabhishek. Then Sri Ram has given advice to the people of Ajodhya, and there is Garuda's Sambat. Then we have Kakabhusant, Loma's Sambat, then Jnana Bhakti Nirupan, and end of the Uttarakhand. So all about this will talk to you by our speaker. So now I'm going to welcome virtually
Mr. Panchanand Sahu sir to this Google board. Being the host and convener of this program, as you all know, myself, Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner, Odisha State Bharat Scouts and Guide, and also the faculty of Mahasi College of Natural Law, Department of Economics. I invite all the dignitaries to this Google board and also invite Mr. Sahu for this webinar as our chief speaker. In this auspicious day, we'll start with Ram Bhajan by Dipti and Mona Lisa. Over to Dipti and Mona Lisa. बोला कि मुश्किल है, आधा किलो सुबह ले लीजिएगा, आधा किलो सुबह ले लीजिएगा. Okay, if then Mona Lisa, yes, please. Mona Lisa, please start. Sri Ram, Sri Ram, Sri Ramachandra Kripal Bhajaman Haran Bhava Bhaya Darunam Nabha Kanja Lochana Kanja Mukhakara Kanja Pada Kanjarunam Kandarpa Aganita Amita Chavinaba Nila Nirada Sundara पटपीतमानौ तडितरुचि नौमि जनकसुतावर भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौसल चन्द दशरथ नन्दनं शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उजारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित करदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं श्रीराम 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 Sri Ram. Thank you. Thank you, Mona Lisa. Thank you so much. So now it's time to inculcate spiritual values among the volunteers, among all the audience present over here. So I'll now request Mr. Panchanand Sahu to start with the program Lankakan and Uttarakhand. Over to Panchanand sir. जय श्री राम. गुरु माता गुरु पिता गुरु गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. आगच्छस्य विघ्नराज वाक्य देवी सरस्वती श्रद्धा विश्वास पतिक नमस्ते शिव पार्वती. सूर्य वंश इष्ट सूर्य कीर्ति स्तंभ सीताराम सत्य धर्म प्रतिबिंब आगछ श्री हनुमान. ढाळुछि भगति अर्घ्य करंतु प्रभु कल्याण एवं राम राज्य जन्हे शुणी करे रामायण शुणी करे रामायण. परमात्मा श्री रघुनाथ को भक्ति प्रणाम जनाई.
आरंभ करेगा जाए अग्र सत्संग कार्यक्रम रामचरित मानस महोदय अनुष्ठान कर्मकर्ता वृंद एवं राज्य कोण मन रही रामस आस्वादन करुवा रामस पिपासु सज्जन वृंद अनंतपुरी ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री रघुनाथ अपार महिमारू कणिका बयान करथम सुजग मिथ्यारू प्रथमे मु मोर आंतरिक कृतज्ञता जनाय संगे संगे आपको साधुवाद ज्ञापन करुछि। सोधी वृंद आपने जो श्री रामचरित मानस भितर प्रवेश करते जिते कहले सरिबार नुहे यह एक असंधि खंडार शास्त्र कहूँ शारदा से महेश विधि शारदा से महेश विधि आगम निगम पुराण आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान करहि निरंतर गान। अर्थात शारदे सरस्वती शेषजे अनंत महेशजे देवदेव महादेव विधि जे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आउ आगम निगम पुराण आदि जेमती राम कथा कही शेष कर पारिनाहांती आहरी अच्छी बोली स्वीकार करछंती सेठी स्वल्प सीमित बुद्धि मानव राम नाम कौन वर्णन कर सज्जन आज हूँ सत्संगर अंतिम दिवस हेले रामायण आज आम कौन शिखिले मोह माया संसार आम एत जड़ित हो जाइछे जे प्रभु स्मरण करने आम पाखे समय टे ना जहाँ जो आम मनीष जहाँ समाज रे आज आम सुप्रतिष्ठित से दिन को दिन आम मानस पटू दूरे जाउछंती एई भौतिकवादी दुनिया रे आम खाली राताराति कोटिपति खाली खोज बोलुचे आउ जहाँ जानले किपरि आहरी आहरी अर्थ उपार्जन हो पार आम से धंदारे लगी पड़ीचे किंतु कौन पाइले एवं कौन जानले आम सुख शांति रही पारिबा सेतिकी आम जानि पार नथियारु आम जेते दिन आदि खटले मन आमर अशांति एवं रोगग्रस्त आज भगवान कृपार आध्यात्मिक पथ बा सत्संग जोग देइछे जीवन सत्य कौन जानिबा सज्जन जहाँ को पाइले आउ किछि पाइबार लालसा रहे नाही कि जहाँ को जानला जानिबार किछि बाकी रहे नाही संसार से दुर्लभ कथा दुटी कौन जानती से कथा दुटी है एक रे राम दुई रे रामायण राम को पाईगले संसार आ किछि पाइबार दरकार नहीं सज्जन कि रामायण जानिगले संसार आ कौन सी कथा जानिबार दरकार नहीं कारण राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोको पितु माता अर्थात राम ना ही लोक मनुष्य को पिता माता पर रक्षा करे एवं परलोक परमात्मा परम को प्रदान करता सज्जन तेणु अन्य जेते सहस नाम गाइले थरुटे राम नाम गाइद ही यथेष्ट हम देवदेव महादेव ठीक यही कथा पद्मपुराण माँ पार्वती कहते राम रामेति रामेति रमे रामे नमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने शिव पुण्य आउ कहते जपत सर्वेदांश सर्वमंत्राश पार्वती तस्मात् कोटि गुण पुण्यं राम नाम्यति लभ्यते समस्त वेद समस्त मंत्र जप द्वारा जो फल मिले तार कोटि गुण पुण्य फल ही राम नाम जप द्वारा मिलता है सज्जन यहीपरि राम नाम संसार समस्त प्राणी को बचमुखी देता है राम नामेव केवलं गतिस्तेषं सुनिश्चितम् सब संसार नाला बेले से बोधे कहती राम नाम सत्य है आउ सब कथा झूठ है राम नाम सत्य है आउ सब कथा झूठ है राम नाम सत्य है आउ सब कथा झूठ है पुराण पुस्तक को उल्टाइले राम नाम महिमा ए अनेक देखा पाए सज्जन एवं आसन जाना रामायण कौन रामायण राम कयन अर्थात राम को पाइबार मार्ग जीवन गठन महान आदर्श आउ परिवार निर्माण गूढ़ महामंत्र ये रामायण केवल हिंदू संस्कृति नहीं सज्जन यह समग्र विश्वर संस्कृति समग्र मनीष समाज परम शिक्षा एवं पशु पक्षी कीट पतंग आदि समस्त प्राणी मुक्तिर पथ सज्जन आम एथर विश्वास को पशिया एणे राम सेतु बंध बांधि बानर सेना सह धरी लंकार प्रवेश कर युद्ध घमाघट चलीचे रावण अहंकारी एवं विष्णु जो तार अनेक सैन्य सेनापति मत मरीगले
ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଖି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ରାବଣ ଜାଣିଛି ସୀତା ହରଣ ହେଲେ ରାବଣ ମରଣ, ତେବେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା କାହିଁକି? ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଦି ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସୀତା ନେଇ ଫେରାଇ ଆସ। ତଥା ବିଷ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଶିବ କହିଲେ, ରାବଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ପାର୍ବତୀ, ସେ ଅହଙ୍କାରୀ। ରାବଣ ଯିଏ କହୁଛି, ଜାନାମି ସୀତାଂ ଜନକ ପ୍ରସୂତାଂ ଜାନାମି ରାମଂ ମଧୁସୂଦନଂଚ ଜାନାମି ରାମସ୍ୟ ଶରଣେ ବଦ୍ଧ ତଥାପି ସୀତାଂ ନ ସମର୍ପୟାମି ତଥାପି ସୀତାଂ ନ ସମର୍ପୟାମି। ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଜନକ ରାଜା ଝିଅ, ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ହେବି। ତଥାପି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏକା, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନା, ଚାହେ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଲଙ୍କାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଚାହେ। ବଡ ବଡ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ନିପାତ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ରାବଣ ବଳବାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଛି। ରଣାଙ୍ଗନାରେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ, ତଥାପି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବସିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ବଳିଆନ। ରାମ କହିଲେ, ସେ ବଳକୁ ମୁଁ ଦେଖ ସଂହାର କରିଦଉଛି, ହରଣ କରିନେଉଛି। ସେ ବଳକୁ ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ହରଣ, ସୀତା ମୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଫିଟିବ ବନ୍ଧନ। ଭକ୍ତ ହେବ ଭେଟ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ପଦ ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିବୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ହସ୍ତ ଛେଦି ଦେଲି କର ବଶ୍ୟତା ଶିକାର, ହସ୍ତ ଗଲେ ପାଦେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏ ବୀର। ପାଦ ଗଲା ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ତ ପରାସ୍ତ, ଗଣ୍ଡିରେ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ ଜଗତ। ଅବେଳେ ଉଠାଇ ମୋତେ କରି ଆକର୍ଷଣ, ପତିତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଛ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଜୟ ମୁଁ ପରାଜୟ ହେବି କାହିଁ ପାଇଁ, ବୀର ଗତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବି ମୁଁ ଯାଇ। ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଛେଦନ, ପଡ଼ିଲା ରାବଣ ପାଶେ କରି ଜୟଗାନ। ଜ୍ୟୋତି ଏକ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ଗଲା ଆସି ମିଶି, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତେ ରାବଣ ଦୁଃଖେ ଗଲା ଭାସି। ତାପରେ ରାବଣକୁ ବଳ ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାୟାବଳୀ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ନିକୁମ୍ଭ ପଟ୍ଟମୂଳେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାମଙ୍କ ଶରଣାଗତ ବିଭୀଷଣ ରାମକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିକୁମ୍ଭ ପଟ୍ଟମୂଳେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ମାରିବା ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ତାକତ ନାହିଁ। ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଖାଇନଥିବ, ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନଥିବ, ଆଉ ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ବୈଷ୍ଣବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ସେଇ ଏକା ତାକୁ ମାରିପାରିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି। ରାମ କହିଲେ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ନଥିବେ, ମୋ ସୀତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ସେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବି। ସତେ ଭାଇ, ସତେ କିରେ ଭାଇ, ପାଳିଛୁ ଏ ବ୍ରତ 12 ବର୍ଷ ମୋର ପାଇଁ। ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ତେଜି ଅଛୁ ଧନ, ଖାଦ୍ୟ ପେଟେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ରେ, ଭୋକ ଉପାସେ ରହି। ସେବା କରିଛୁ ଜୀବନ ଦେଇ ରେ, ଭୋକ ଉପାସେ ରହି। ମୁଛାର ଚଣ୍ଡାଳ କାଟିଅଛି କାଳ, ଖାଇ ପିଇ ସଉକରେ। ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ଦିନେ ଖୋଜି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ରେ, କେତେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛୁ ତୁ ତିଳ ତିଳରେ, କେତେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମାତା କହିଥିଲେ ବନବାସ କାଳେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ। ତୁହି ତାର ପିତା, ସୀତା ତାର ମାତା, ବୁଝିବ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କି ଦେବି ଉତ୍ତର। ଘରେ ପଚାରିଲେ ମାତା ମୋରରେ, ମୁଁ କି ଦେବି ଉତ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁହଇ ଏକା ନୁହେଁ ମୁହିଁ, ଉର୍ମିଳା ପାଳିଛି ବ୍ରତ। ଆରେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ତୁହି, ମତା ହୋଇଯାଏ ନତରେ, ଦିଏ ଆଶିଷ ତୋତେ।
बड़ भाई हेबु तू जुगान्ते रे दिए आशीष तोते सत्य भाई तु व्रत पालिचु लक्ष्मण कहले आ विलम्ब न करी मते आशीर्वाद दियो भाई राम आशीर्वाद दे विभीषण हनुमान आदि अष्ट द्रौपदी को पात्र संगे पठाई देले लक्ष्मण निकमला पटमूल जाए देखते इंद्र तो यज्ञ करुच्ची हनुमान आदि यज्ञ भज्ञ को भंग करदे इंद्र तो क्वान्वित होई ओंकार नाद करी उठला युद्ध करिया को से लक्ष्मण हाथ रे निहत हैला रावण रागान्वित होई निजे राण रणांगना जाऊ पदंडा मान हैला राम को सहित माया युद्ध करी से मत हारीगला शेष रे राम ताको ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले प्रतिरोध कला दैत्य वृथा हैला चेष्टा ढड़ी पड़िला रथरु जोड़ी कर पृष्ठा सम्मुख दर्शने मुक्ति पाइबार पाई स्मरिला रावण हृदय रघुकुल साई सम्मुखे देखि कहला थिलु आम्भे द्वारी अभिशापे जन्मिलु राक्षस तनु धरे विजय से कुंभकर्ण जय मु रावण तारंतु जनकु आउ देई दिव्य ज्ञान तारंतु जनकु आउ देई दिव्य ज्ञान ता गरु आग कुह महाभाग त्रिपुर राज लंक राज ता गरु आग कुह महाभाग त्रिपुर राज लंक राज त्रिपुर राज लंक राज राजनीति पणे ख्याति त्रिभुवने कुह राजनीति राज कार्य कुह राजनीति राज कार्य भूली भूली वन गला मदिन न जानिलु कण राजनीति न जानिलु कण राजनीति पुरे गले चली देबु दंडधारी पालिबु प्रजा को केहू रीति पालिबु प्रजा को केहू रीति हसिला दुर्मति भुवन त्रिभुवनपति सृष्टि स्थिति लय जार खेल सृष्टि स्थिति लय जार खेल कि भूमु ज्ञान अधम अधम शुण तेबे मोर जीवा बेल शुण तेबे मोर जीवा बेल बोले नोही मती आहे रघुपति भरसी नजीव काक थारे भरसी नजीव काक थारे परखिब ताकू पठाई चारकू अबागुप्त भेषे रजनी रे अबागुप्त भेषे रजनी रे यदि शुभ कर्म करिब संपूर्ण मंद कर्मे खेपु थिब काल मंद कर्मे खेपु थिब काल तेबे जे परोष उड़िब हि जस कीर्ति रही जीव काल काल कीर्ति रही जीव काल काल ता उदाहरण ए मूढ़ अधम स्वर्ग को निशुणी थांती बांधी स्वर्ग को निशुणी थांती बांधी ऋण समुद्र को क्षीर समुद्र रे करी थांती मंदे हेले चंदी करी थांती मंदे हेली चंदी जनहित छाड़ी मंदे गली माड़ी आज तुम हस्ते हेली हत आज तुम हस्ते हेली हत क्षमा कर मते आहे रघुपते ज्योति राम हेला अंतर्हित ज्योति राम हेला अंतर्हित रावण मृत्यु पर विभीषण लंकार राजा हेले सीता उद्धार और राम अयोध्या सीता उद्धार करी राम अयोध्या को फेरी आसंती खूब संक्षिप्त रे लंका कांड समाप्त हला आसंती एथरा सुनिमा उत्तराखंड राम राज्य बहुत सुंदर सर बहुत बढ़िया लगुची थैंक यू मोर अनुरोध सब बंधु माने केही मझिरे छाड़ी के जिबे नाही आमे शेष पर्यंत समस्त रहिबा सर को भी टिके उत्साहित लागिबो यस सर प्लीज सर राम राज्य काशी राजगादी रे बसंती अभिषेक होईची प्रधानगण समस्त अवस्थान करछंती राजा होइबारो राम जगत आनंद खेली गला वार्ता शांति प्रीति मकरंद हिंसा द्वेष बैरी भाव होइला भान नाही कार भय भ्रांति सर्वे धर्म प्राण हेले दया अवतार पर उपकारी परस्पर स्नेह भारी पड़िला उछुली दैहिक दैविक आउ भौतिक ताप न करिला स्पर्श कारे न छुइला पाप थाना की डाक्तर खाना न रहिला राजे कचेरी कचेरी न देखिले के साम्राज्य भाई रे अपड़ सीना पड़ई पाचेरी
ଗଣ୍ଡଗୋଳେ ଯାନ୍ତି ସିନା ଥାନା ଓ କଚେରୀ ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଚଳିଲେ ସରବେ ପାଚେରୀ କଚେରୀ ଲୋଡ଼ା ନ ହୋଇଲା ଲବେ ସବୁରି କର୍ମଠ ଯେଣୁ ନ ଛୁଇଁଲା ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା କି ଲୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ତରୁ ଲତା ଦେଲେ ଯେ ଓଜାଡ଼ି କେହି ନ ରହିଲେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ନର ନାରୀ ଚୋରି ଡକାଇତେ ରାଜେ ନ କରିଲା ସ୍ପର୍ଶ ନିର୍ଭୟରେ ନର ନାରୀ କରିଲେ ନିବାସ ଅକାଳ ମଡ଼କ ରାଜେ ନ ପାରିଲା ପଶି ଯେଣୁ ରାମ ନାମ ସତ ସଙ୍ଗ ଦିବାନିଶି ଏକ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ସଂଯମୀ ସମସ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭୂତ ବୈଷମ୍ୟ ନଥାଏ କାରେ ସର୍ବେ ସଦାଚାରୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିପ୍ର ଯାର ଥାନ୍ତି ଗଳା ମାଳି ତେଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଲହରୀ ଖେଳି ଗଲା ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛ ତ ଗୌରୀ ରାମ ସ୍ପର୍ଶେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତରୁ ଲତା ଆବର ମାନବ ରାମ ନ୍ୟାୟ ଦରବାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ କି କୁହ ଭୋଳାନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ କି କୁହ ଭୋଳା ସାଇଁ ପାଆନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କି ପରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ଶୁଣ ହୈମବତୀ କହୁଛି ଭାରତୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ମନ ଦେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ମନ ଦେଇ ଗୁଧ୍ର ଏକ ଦିନ ଆସିଲା ସଗନ ରାମଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା ଯାଇ ରାମଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା ଯାଇ ଶୁଣ ମୋର ଗିର ହେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ୍ୱର ବସାରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ବାସ ବସାରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ବାସ ପେଚା କାହୁଁ ଆସି ପଶିଛି ସାହସୀ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ମୁହିଁ ରଘୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ମୁହିଁ ରଘୁ ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଚାର ଆହେ ରଘୁବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୁହି ନ ପାଇଲେ ରାୟ ଆହେ ରାମ ରାୟ ତୁ ଆଗେ ମରିବି ବିଷ ପିଇ ତୁ ଆଗେ ମରିବି ବିଷ ପିଇ ଏ ସମୟ ପେଚା ମିଳିଲା ସହସା କହିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାସାରେ ବାସ କରୁଛି ଏ ନିଶ ଜବର ଦଖଲ ମିଛ ସବୁ ଜବର ଦଖଲ ମିଛ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ କୁହ ଗୁଧ୍ରତମ କେବେଠୁ କରିଛ ସେଠି ବାସ କେବେଠୁ କରିଛ ସେଠି ବାସ ଉଲୁକ କିପରି ରହିଲା ଆବରି କିଏ ମିଛ କିଏ ସତ ଭାଷ କିଏ ମିଛ କିଏ ସତ ଭାଷ ଶାଗୁଣା କୁହଇ ଆହେ ନରସାଇ ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ସେହି ଦିନୁ ହିଁ ଭାଷେ ଥିଲି ରହି ମିଛ କୁହେ ପେଚା ମତି ଭ୍ରମ ମିଛ କୁହେ ପେଚା ମତି ଭ୍ରମ ପେଚକ କହି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ କାଳୁ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ କାଳୁ ଆସିଅଛି ରହି ମିଥ୍ୟାଏ ନହି ବିଚାରନ୍ତୁ ଆହେ ମହାମେରୁ ବିଚାରନ୍ତୁ ଆହେ ମହାମେରୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଚାରି ବୃକ୍ଷ କି ମାନବ ଆଗ କୁହ ହେତୁ କରି ପ୍ରଥମେ ରାମ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଜଳମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଇଚ୍ଛାମୟ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଲେ ତହୁଁ ପରମେଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ତଳମଳ ଦେଖି କଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧୁ କୈଟଭ ଅସୁର କଲା ସେ ଗର୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ନ ପାରିଲେ ସହି ନାସି ମେଦରେ ସର୍ଜିଲେ ମେଦିନୀ ଯା କହି ତାପରେ ଯେ ତରୁ ଲତା ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଶେଷେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ତାହେଲେ ଅଧିକାର ପେଚାର ଏ ଘର ଶାଗୁଣା ମିଛୁଆ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତୋହର ଏ ସମୟ ବାର ବାର ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଅଭିଶପ୍ତ ଏ ଯେ ଦଣ୍ଡ ନଦିଅ ନୃମଣି ଅଭିଶପ୍ତ ଏ ଯେ ଦଣ୍ଡ ନଦିଅ ନୃମଣି
गृध्र थिला पूर्व जने राजा ब्रह्मदत्त गौतम करिले भिक्षा भोजन निमित्त मांस रांधि देवारु से मुनि देले साप गृध्र हुआ राजा सुपकार पेचा रूप राम का दर्शने जाई होइब मुकति मुकति हेलोणी क्षमा दिया सीतापति पक्षी चरित शुणी हेली तृप्त पुणी सृष्टिर पक्षी चरित शुणी हेली तृप्त पुणी सृष्टिर रहस्य उभये नाथ पशु वृत्तांत आउ से श्रेष्ठ मनीष पक्षी चरित श्रेणी शुणी हेली तृप्त शुणी पुणी सृष्टिर रहस्य उभये नाथ पशु का वृत्तांत आउ से श्रेष्ठ मनीष राम को शासन अटे शीर्ष स्थान राम को न्याय विचार शुणी सर्वे स्तब्ध कीट टू विभूत ध्वजा गाए फर फर जार राम नाम करिण श्रवण पापी तापी हंती मुक्ति जार राम नाम करिण श्रवण पापी तापी हंती मुक्ति राम राज्य परी नाही वसुंधरी राम परी राजा कीर्ति शुण से कीर्ति राम का न्याय विचार धारा मोहित कर त्रिपुर पुणी से आत्महरा दिने गुहारिया गलेनी सबु न्याय को पाई लुह ढाले एक कुकुर सिंह दुआरे रही अंतर्जामी राम जानिले तार अंतर कथा डाकी नहीं पूछा करिले कुह तो हृदय व्यथा कहीं कांदुचु किए बा तोते देइछि गाली किबा बाड़ेइछि खाइनु कण धन संखाली भो भो कांदी कुहई स्वान पड़ी पादरे कि महान तुमे देखिनी राजा मही मध्यरे न खाइले पेट जाउछि पुरी वचन शुणी एपरी राज्य अनीति हुए हे नरमणि शोईथिली रास्ता कड़े आसी भिक्षु ब्राह्मण परम सिद्धि से पिटिले मोते बिना कारण किछि करी नाही दोष मु थिली मो बाटे धरी अन्यारे काहीं पिटिले करे हारी गुहारी ढकाइले से ब्राह्मणे राम हेला से उभा कि कारणे स्वान पिटिल एबे कुहंतु बाबा थिला प्रभु मोर दुर्दिन सेही दुर्भाग्य बेल क्षुधा जर्जरित उदर दाउ साधिला काल भिक्षा मुठे पाई नेहुरा होई मागिबा बेले झुंटी पड़िली मु स्वान को मोर अजाणतरे चालीगला दाता आसिला मोर मन रे राग उपासिता तो लागी कुकुर पिटिछि महाभाग आखि बुलाइले श्रीराम सभासद को चाही मतामत कण दियंतु मंत्री विचार पाई पार्षद जे देले प्रस्ताव सबु ब्राह्मण दोष बिना कारण रे पिटिछि मने बहिण रोष श्रीराम कहिले कुकुर एते दोषी ब्राह्मण अपराधी दंड पाइब किंतु ए घटन केउ दंड देले महात्मा तुमे होइब तोष जहा अछि मने करंतु एबे शीघ्र प्रकाश खुशी होई स्वान कहिला तेबे भोगु ए भंड शिवंक मंदिरे परीक्षा कर सोम मरु ए दुर्दंड सभासद सर्वे आबाक होई रहिले चाही दंड तय नुहे कुकुर देलु आशीष तोही ए उचित दंड भोगुए से दुर्दंड कहूची बुझी विचारी ए उचित दंड भोगु से दुर्दंड कहूची बुझी विचारी कर्मर विपाक हेब दुर्विपाक न पारिबे केही टाळे जे विचुक ब्राह्मण लोभे हेब बाम ब्रह्म स्वनोहिब पार
କୁକୁର ଜନ୍ମ ଥୁଆ ପର ଜନ୍ମ ଅଟେ ଏ ବିଧି ବିଚାର ଫିଲ୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଖାଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋଭେ ହୋଇ ପରବଶ ଦେବସ ବ୍ରହ୍ମସ କଲେ କଲା ମତେ ଗ୍ରାସ ସ୍ୱାନ ହେଲି ଅବଶେଷ ମାପି ଚୁପି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଦି ମୂଳ ପ୍ରାଣୀ ତା ନ ପାରେ ଜାଣି ଭଲେ ଭଲ ଫଳ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଖୁସି ହେଲି ନାଥ ଶୁଣିଣ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କରେ ସେ କିମ୍ପା ପାପ ପ୍ରବଳ କିପରି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସାଇଁ ରାମାୟଣ ଶୁଣ ମୁକତି ପଥ ନେବ କଢାଇ ଶ୍ରୀରାମ କୁହନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ସୁଧି ଜନ 84 ଜନମ ପରେ ମଣିଷ ଜନମ ବହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ନର କଳେବର ସାଧନାର ଧାମ ଏ ଯେ ମୋକ୍ଷର ଦୁଆର ଦୁଇଟି ସମ୍ପଦ ଦେଇ ପ୍ରେରିଛନ୍ତି ହରି ବିବେକ ସୀମିତ କାଳ ଜାଣ ହେତୁ କରି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବାକୁ କର୍ମ ମଣିଷର ଦାସ ସେହି ମାନବର ଧର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମୀ ଭବେ ପାଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ଭୋଗେ ସେ ଦୁର୍ଗତି ଅବିବେକୀ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନେ ସଦା ବସ करे जा कामना तार न हुई शेष भोगे माते रोगे घांटी पाए मोहा दुख करे पश्चाताप निंदे प्रभु को दुर्मुख कोई पथ भ्रष्ट करे नष्ट इह जन्म करे इतरे जन्म से मूढ़ अधम किंतु विवेकी सत्पथे थाए तार मति गुरु गुरुजन साधु संथे थाए भक्ति पर उपकार सत संगे थाए मन प्रभु समर्पित करे भजन कीर्तन राम नाम सत्य मणे मिथ्या ए संसार राम कयन अटे मुक्तिर द्वार सदा विश्वास प्रतीक छन्ति हर गौरी राम को आत्मा सत्संगे थिब तांकु बरी भक्ति जन्मिब मुक्ति पाइब से जन संसार मुक्ति पसरा श्रेष्ठ रामायण रघुनाथ हे उदाहरन्तु प्रभु सीताकान्त हे रघुनाथ हे उदाहरन्तु प्रभु सीताकान्त हे मुक्तिर सोपान प्राणी गंठी धन कहिल जार घुराण बाहर अंतर सफा करिबार कल ए जे रामायण गुरु होई मुहि मिनती करई सुन राम भारती प्रथमे अधम पुरोहित काम करिबाकु कले नास्ते बुझाइले ब्रह्मा हे महात्मा लाभ एव भविष्यत सूर्यवंशे राम निजे परम ब्रह्म जन्म हेबे आसे मर्त्य शुणी हेली खुशी विधि को प्रशंसी कली पुरोहित काम जन्म जहला धन्य करिली दर्शन बर एक मागे राम जन्म जन्मांतर रहु प्रेम मोर तुमरी चरण तले न होई बहुना करंतु करुणा कृपा मागुछि पयरे शुणी पूर्वभाषे स्तब्ध गुरु शिष्य शुणी पूर्वभाषे स्तब्ध गुरु शिष्य वाणी होइले राम विमुख दुख आसे टाणी राम को भजने प्राणी पाए सदगति राम रामायण दिए प्राणी गति मुक्ति कृपा कर प्रभु सत पथे जाऊ दिन मुख्यंतु पुरवासी करंतु कल्याण
उद्भव हेला सद्भाव पुणी राम भक्ति भक्ति स्रोते भासी गले काम क्रोध भ्रांति सुख शांति रे रहिले पुरवासी गण धन्य धन्य राम राम राज्य धन्य रामायण धन्य धन्य राम राज्य धन्य रामायण सुधीवृंद एठार बाणी की विराम देवा जाउछि मु जने पेशादार वक्ता नुहे कि जने जने कवि और लेखक मात्र प्रभु शिव राम उपलब्ध आश्रय बल अधुना केते नाटक गीतनाट्य दड नाच रामायण पाला संकीर्तन जनान पर्यटन आदि लिखिया को सक्षम होइछि एबे रामायण 7 कांड प्रिंट होउछि एवं भाषा साहित्य संस्कृत अपूर्व संभार प्रिंट होको बसिछि मु एति एही कहया भितरे जदि शिक्षिता शिक्षार थाए या मोर प्रभु करुणा आ जदि किसी त्रुटि थाए क्षमा देबे कहया को पदे सुयोग देइथारु आपन को अशेष अशेष धन्यवाद धन्यवाद देउछु अंशु मन को से मोह ना को रुकेन रेकमेंड करथियारु आसंतु प्रभु भजन करी आज बाणी को विराम देबा भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम देवा देवी की जय अपना अपना पिता माता की जय अपना अपना गुरु गोविंद की जय बोल भाई सर्व संतन की जय श्रोता भक्ता बुद्ध बंदा समस्त मंगल वांदे एक बार हरि बोल समस्त मन सत्संगा सद्बन उद्रेक और एक बार हरि बोल दाता भक्ता कर्मकर्ता समस्त मन मांस पूर्ण हो और एक बार हरि हरि बोल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति हर हर महादेव जय श्री राम जय ब्रह्म जय श्री राम बाणी विराम दे थैंक यू सर बहुत धन्यवाद पंचानन सर बहुत सुंदर निजे लिखी निजे पढ़िबा एवं सेत्रे केबे हेले त्रुटि रहिबो नाही हमें जानिछे बहुत सुंदर लगिला मु वर्तमान अनुरोध करबी प्रमोदिनी मैडम डॉक्टर प्रमोदिनी साहू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट इमरती देवी वुमेन्स कॉलेज मैडम मैडम धन्यवाद मैडम यस प्लीज उड़िया में बोलूं या हिंदी में हिंदी में अच्छा लगेगा मैडम अच्छा लगेगा क्योंकि बाहर के क्षेत्र से जुड़े हैं हमारे प्रतिभागी यस यस प्लीज इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बोलना चाहूंगी और इजाजत चाहूंगी कि जो कि राम के महत्व या रामचरितमानस के महत्व क्या उसकी विशेषताएं जो कुछ भी रह गया है मैं थोड़ा उसके ऊपर आलोकपात करना चाहूंगी क्योंकि 4 वेबिनार हो गए हैं उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है मैं ये इजाजत लेना चाहूंगी आपसे थैंक यू वेरी मच मैडम प्लीज अच्छा ठीक है आज के वेबिनार में मैं सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों को सभी विद्वत जनों को अभिवादन करना चाहूंगी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस सर्वजन ग्राह्य सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में प्रसिद्ध है। तुलसी की राम के प्रति अनन्य भक्ति से सभी परिचित हैं। तुलसी का साहित्य प्रतिभा शिक्षा एवं भक्ति की त्रिवेणी के कारण ऐसा सुशोभित है कि प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके सामने झुक जाता है। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार की आयोजिका और संयोजिका डॉक्टर नमिता पटनायक मैडम को साधुवाद देना चाहूंगी क्योंकि वो ओडिया भाषी ओडिशा राज्यवासियों के हृदय में राम भक्ति भावना या आध्यात्मिक भाव जगाना चाहती है। राम महात्म्य को प्रतिष्ठापित करना चाहती है जो आज के युग के लिए परम आवश्यक है।
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज के समाज में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितना माने दुख और शांति सब कुछ फैले हुए हैं। तो इसलिए ये सब कुछ दूर करने के लिए राम भक्ति परम आवश्यक है। आध्यात्मिक भावना से मनुष्य दूर है, तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है राम कथा की चर्चा करना और प्रत्येक मानव के प्राण में राम भक्ति भावना जगाना। तो ये तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है नमिता मैडम का। तो उन्होंने उनका उद्देश्य तो महत्व है, तो उन्होंने 4 वेबिनारों के माध्यम से श्री रामचरितमानस की जो पुनीत कथा की चर्चा करवाई है। मैं सोच रही हूँ ये बहुत ही जैसे कि कम पड़ गया है, तो मैं एक शिक्षाविद होने के नाते यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि रामचरित जो की कथा है उसको 4 वेबिनारों से बांधकर चर्चा करना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, यह दुष्कर है। श्री रामचरितमानस एक सर्वोत्कृष्ट विशाल महाकाव्य है। तो उसमें 7 कांड भी है, तो ये 7 कांड के लिए 7 वेबिनार की पृष्ठभूमि चाहिए थी। 4 वेबिनार में सिर्फ मानस की कथा वस्तु की चर्चा हुई है, या रामलीला का इसमें गायन हुआ है और चर्चा हुई। रामचरितमानस के महत्व, उसकी विशेषताओं पर नहीं। हम सब जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज के प्रति छवि साहित्य पर ही प्रतिबिंबित होती है। साहित्य सर्वव्यापक भी होता है, हर युग में उसका महत्व रहता है। साहित्य अमर है, अजर है, आप लोग जानते हैं। मानस का कथानक पूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सुगठित है, जो 7 कांडों में विभाजित है। यद्यपि तुलसी ने नाना पुराण निगमागम की बात स्वीकार की है, पर वो मूल रूप से वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमानाटक, प्रसन्न राघव, श्रीमद् भागवत तथा पुराणों में वर्णित राम कथा पर आधारित है। अतः विख्यात और लोकप्रिय है। उसके आदि, मध्य और अवसान भी सुव्यवस्थित है। राम जन्म से लेकर वनवास तक की घटनाएं आदि भाग से संबंधित हैं। वन यात्रा से लेकर सीता हरण तक की घटनाएं कथा के मध्यम भाग की द्योतक है। सीता हरण से लेकर रावण वध एवं राम राज्य की स्थापना तक कथा जो है वो अवसान है। मानस का मुख्य कार्य है रावण वध एवं राम राज्य की स्थापना। संपूर्ण कथा इसी कार्य की दृष्टि से अग्रसर होती हुई अंत में अपने अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचती है। इसकी कथा नाटकीय ढंग से नियोजित है। तो हम जानते हैं हर रचना के पीछे कवि या लेखक का कोई उद्देश्य निहित रहता है। इसी महान उद्देश्य से प्रेरित होकर तुलसी ने भी मानस की रचना की। कहा जाता है कि तुलसी ने अपने सुख हेतु ही मानस की रचना की है, उनका ये मूल उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उनकी यह उक्ति इसी तथ्य को स्पष्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि वे लोक मंगल की भावना से प्रेरित रहे। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सूरसरी सम सब कहाँ हित होई। उनकी यह उक्ति इसी तथ्य की साक्षी है। तुलसी का तीसरा उद्देश्य यह है कि उन्होंने राम भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु मानस रचा। उन्होंने कहा भी है, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी। वस्तुतः तुलसी के मानस रचने का मूल उद्देश्य लोकहित ही था। वे लोकहित भक्ति को मानते थे। जिसमें लोकहित नहीं है वो साहित्य कैसे हो सकता है। तुलसी के महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे चरित्र सृष्टि में अद्वितीय हैं। उन्होंने जिस पात्र को भी उठाया है उसका जीवन चित्र
उसके अभ्यंतर की समस्त विशेषताओं के साथ स्पष्ट कर दिया और वो पात्र एक आदर्श बनकर खड़ा हो गया है। फिर चाहे वो जटायु हो, शबरी हो या निषाद राज, प्रतिष्ठित पात्रों के व्यक्तित्व को तो तुलसी की लेखनी ने चार चांद लगाए ही हैं। कुटिल पात्रों की कुटिलता को भी तुलसी ने अपने पूरे कौशल से उभारा है। जैसे कि जयंत और कपट मुनि, रावण आदि ऐसे दुष्ट जो पात्र हैं वे कुटिल पात्र के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस का राम जो कि है मुख्य पात्र है, नायक है, घटना के केंद्र बिंदु है और जिसके चरित्र को महत्व देकर तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, वो है राम। वो आदर्श पुरुषोत्तम राम, दशरथ के पुत्र राम, अयोध्या नगरी के राजा राम, और विशिष्ट गुणों से वो संपन्न है। वे क्षत्रिय, कुलोद्भव, उदार, विशाल अंतकरण वाले भारतीय चरित्र के आदर्श हैं। हमको यहाँ पर एक बात ध्यान देने की वह है कि तो तुलसी ने ये जो राम नामक जो कि चरित्र की उद्भावना की, वो शायद सोचते थे कि राम जैसे इस समाज में सभी चरित्र राम जैसे हो जाए और राम राज्य की कल्पना करते हुए उन्होंने शायद रामचंद्र जैसे पात्र की उद्भावना की है। संपूर्ण मानस का केंद्रीय पात्र राम ही, और उसमें भी आपने देखा कि जितने भी पात्र हैं सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाए हैं। तो तुलसी ने राम कृपा में खास करके सभी पात्र के ऊपर आलोकपात नहीं करूंगी, राम और रावण के ऊपर ही थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो तुलसी ने राम के रूप में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की आदर्शमयी ऐसी जीवंत प्रतिभा प्रतिष्ठित की है जो विश्व भर में अलौकिक, असाधारण, अनुपम एवं अद्भुत है, जो धर्म और नैतिकता की दृष्टि से सर्वोपरि, जिसमें त्याग, विराग एवं साधु प्रकृति के साथ साथ लोकहित एवं मानवता का साकार रूप विद्यमान है। वे आदर्श पुरुष हैं ही, साथ ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व संपन्न नायक हैं जिनका कवि की कल्पना राज्य पर एकाधिकार। आप समझ सकते हैं कि तुलसी के राम और भी क्या क्या है ना, बुद्धिमान है, धर्मज्ञ, यशस्वी, प्रजाहितैषी, धर्म रक्षक, गोपालक, सत्यनिष्ठ, लोकप्रिय, बलशाली, शत्रुजयी, धर्मज्ञ, त्यागी, धैर्यवान, प्रियदर्शी, शक्तिशाली, सौंदर्य के अगाध भंडार, धर्मात्मा एवं उच्चादर्श के प्रतीक है। ऐसे पात्र आज कहाँ मिलते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वे विश्व रूप होकर भी मानव हैं और मानव होकर भी परम ब्रह्म स्वरूप हैं। तुलसी ने अपनी उर्वर कल्पना और उत्कृष्ट प्रतिभा द्वारा मानव में देवत्व की, नर में नारायण की स्थापना की, जो सर्वथा प्रशंसनीय है। राम एक समृद्धशाली, सर्व सुख संपन्न एवं जनोपयोगी आदर्श राम राज्य के संस्थापक भी हैं। उसी प्रकार हम प्रतिनायक जो कि खलनायक जैसे भी हम कह सकते हैं, प्रतिनायक या खलनायक रावण के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रावण की भूमिका भी रामचरितमानस में किसी से कम नहीं है। तो रावण का चरित्र बहुत ही तुलसी ने बहुत मैंने उसी के अनुरूप उभारा है। उसका चरित्र राम के व्यक्तित्व को प्रकाशवान करता है। वो मायावी, प्रचंड, चपल, अहंकारी, मत्सरमय, अधर्मी और दुराचारी दानव। उसकी दृष्टि भौतिकवादी, वो पुरुषार्थ, धैर्य, शौर्य एवं स्वाभिमान से युक्त तथा आत्मविश्वासी भी है, पर मानव में उसके कृष्ण पक्ष का ही अधिक विस्तार। आप एक बात सोचिए कि यदि रावण ना होता तो राम का चरित्र इतना औज्जल्यमान कैसे होता। आप सोचिए,
तो इसमें संदेह नहीं कि रामचरितमानस आज भी भक्तों सहृदयों को भाव विभोर कर देता है, अनेक भटकते हुए मानवों के कल्याण की सामर्थ्य रखता है और मानस के माध्यम से ज्ञान, कर्म, भक्ति की जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, उसने उस युग में तो संबल देकर हिंदुत्व को बचाया है। आज भी आस्था और अस्मिता को बनाए रखने के आधार वही है। हर दृष्टियों से रामचरितमानस व्यापक, उदात्त और महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उसमें से हमको महान संदेश भी प्राप्त होता है। इतना ही मैं बहुत मैंने आपको क्या लगा होगा मुझे पता नहीं, मैं बोलना चाहती थी, मेरे मन में जो कुछ भी था मैंने कह दिया। बहुत सुंदर। अब मैं धन्यवाद का पर्व प्रारंभ करना चाहती हूँ। मुझे जो गुरु दायित्व दिया नमिता मैडम ने, तो मुख्य अतिथि हमारे आज के जो कि आकर्षण के केंद्र बिंदु जो है श्रीमान पंचानन साहू जी हैं, जो कि ओड़ो गांव के जो कि सेवानिवृत्त बैंक ऑफिसर हैं, और वो रामचरितमानस के जो कि सभी कांड के ऊपर तो उन्होंने चर्चा की 4 वेबिनारों में। तो आज का उनका आलोच्य विषय था लंका कांड और उत्तर कांड पर उनकी जो कि अपनी सुललित आवाज में गीतात्मक शैली में राम कथा का जो सुंदर वर्णन किया, ये बधाई के पात्र हैं पंचानंद जी। और जो कि रामलीला गायन के द्वारा उन्होंने वातावरण को संगीत मुखर भी कर दिया, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और समुद्र में जो कि सेतु बांधकर, जो कि लंका कांड में उन्होंने बताया, समुद्र में सेतु बांधकर सीता उद्धार और राम के अयोध्या, राम लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या प्रत्यागमन की कथा का लंका कांड में उन्होंने वर्णन किया। बहुत सुंदर रसीला वर्णन उन्होंने किया, रस युक्त वर्णन किया। और प्रतिभागी शायद मैं सोच रही हूँ भाव विभोर हो गए होंगे। और उसी प्रकार मानस का जो कि अंतिम और उपसंहार का जो कांड है उत्तर कांड, उन्होंने अयोध्या नगरी में राम का भव्य स्वागत जो वर्णन किया, मैं वही बता रही हूँ। राज्याभिषेक, सीता का वनगमन और वाल्मीकि आश्रम में सीता का रहना, लव कुश को जन्म देना आदि कथा, और सीता माता की परीक्षा देकर धरती में समा जाने की कथा, और उसके बाद जो कि है अंत में जो कि राम राज्य की स्थापना में ही हमारे रामचरितमानस की कथा की समाप्ति होती है। वो मार्मिक और वर्णन है। तो ये इतना मार्मिक है, जबकि सीता का वनगमन का समय आता है, अंतिम परीक्षा का समय आता है, मानव की माने जो कि हर मानव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये माने असह्य हो जाता है सभी को माने सुनने के लिए। और उन्होंने कहा कि आज मानव महाशक्त होकर राम भक्ति को भूल गया है। वास्तव में उन्होंने 100% सही कहा। तो राम नाम के जो कि जो क्या है महात्म्य पर उन्होंने प्रकाश डाला और प्रकाश देकर कहा कि राम नाम से पुण्य फल प्राप्त होता है और किसी में नहीं। हम कोई भी काम करें निष्काम होकर राम का नाम यदि हम लें तो हमें पुण्य फल प्राप्त होगा और हमारे सारे दुख, हमारे मोह, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राम नाम में इतना क्या है महात्म्य है। वास्तव में पंचानन जी का वक्तव्य शिक्षणीय है, उपयोगी है हमारे लिए। मैं उन्हें तहे दिल से महर्षि ऑफ नेचुरल लॉ और तथा नमिता मैडम की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और उनकी राम कथा के अगाध ज्ञान सराहनीय है। आज का वेबिनार वास्तव में राममय हो गया उनके जो कि वर्णन से, उनके जो गायन से मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा। फिर से पुनर्बार में पंचानन जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ की प्राचार्य जो कि डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र जी तो वेबिनार में शायद मौजूद नहीं है, फिर भी वो बधाई के पात्र हैं, तो उनको भी आभार देना चाहूंगी, क्योंकि उनके प्रोत्साहन से ही हमारी मैडम नमिता मैडम इतने सारे वेबिनार कर पाती हैं। तो और हमारे जो कि इस वेबिनार में दो बच्चों का जो सहयोग रहा कि राम भजन का गायन करके वातावरण को जो कि उन्होंने भक्ति में बना दिया, पवित्र बना दिया,
उनके उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। नमिता मैडम को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास भाषा ही नहीं है, मेरे पास भाषा ही नहीं है, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। किस शब्द से उनकी शुक्रिया अदा करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर भी वेबिनार के पीछे उनका महत्व उद्देश्य है, आप लोग जानते हैं। तो मानव उपयोगी वेबिनार के माध्यम से वो हमेशा ज्ञान का प्रसार करना चाहती है, करती रहती है और आगे भी करेगी। मैं सोच रही हूँ सिर्फ 100 तक वो वेबिनार करके अपने मुकाम पर पहुंच जाएगी, छोड़ नहीं देंगी, निरंतर उनका प्रयास जारी रहेगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और अंत में हमारे जो कि सारे प्रतिभागी इतने धैर्य पूर्वक जो कि हमेशा मैंने हमारे मुख्य वक्ता नमिता मैडम और मैंने जो कि इतनी दृष्टता की ये सब कुछ सुनाने के लिए मुझे झेल रहे हैं, उनको विभिन्न प्रांत से विभिन्न क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिभागी सभी विद्वत जनों को मैं महर्षि कॉलेज की तरफ से, नमिता मैडम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम खत्म ना? नहीं मैडम अनम्यूट कीजिए, मैडम अनम्यूट कीजिए, आपकी बात सुनाई नहीं थैंक यू वेरी मच। जब स्टूडेंट नहीं होते तो टीचर का क्या काम है ऐसे ही हमारा व्यूअर्स नहीं है तो मेरा क्या काम है। तो मैं पहले आभारी हूँ आप सबकी, सारे इंडिविजुअली I bow down my head before all of you for joining us, for encouraging us with your virtual presence. Even if I'm not able to give you the certificate in proper time, but you are joining. I'm so happy and I feel so homely. And when I didn't found anybody very close to me, and each one is close to me, and you can't believe I remember all the names from different states, and वो नहीं आए तो मुझे लगता है अरे मुझे भूल गया क्या। सो ये संपर्क इस सेतु बन गया, इस सेतु बन गया, इसलिए हम लोग एक स्नेह रज्जु में जुड़ा हुआ है। तो ये रज्जु ऐसे ही रहेगा, हम लोग ऐसे जुड़ के रहेंगे। एंड on 14th we are having another program, you know, on that day Hanuman Jan or Mahavishuva Sankranti. So that's an auspicious day for all of us. So on that day I request please all of you join at 6 PM again, we'll listen. एंड मैंने तो प्रमोदिनी मैडम को आभारी हूँ, इतना सुंदर से हिंदी में समझे दे। तो ये समझाना चाहिए क्योंकि बहुत हमारा देश का प्रांत अनुप्रांत में आ रहे हैं, सबको उड़िया भाषा मालूम नहीं है, लेकिन जगन्नाथ का प्रेम में वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ once again. And now I want to share the certificate to one of the participants who joined first today. He is none other than Rajesh Kumar Singh ji, Professor Rajesh Kumar Singh from BDA College, Pichuri, Bokaro. Are you there, sir? Yes, ma'am. Yes, sir. It's for you. आज मैं गांव आ गया हूं और सबसे पहले कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए अतिथि गणों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल आने वाला भगवान श्री राम का जन्मदिन है और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका जाने वाले थे तो उस समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किए और तब वहां से प्रस्थान किए। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि आप इतने दिनों से सभी को जोड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप हंसते हंसते टाल देती हैं और महसूस नहीं होने देती हैं, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और प्रमोदिनी मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि
हर वेबिनार में उपस्थित रहती हैं और सभी को जोड़ती हैं। और अब तो वेबिनार समापन हो रहा है और कुछ मैं बोलता, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं एक बार सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। Thank you, sir. Now it's time to give a small token of love to our chief guest, chief speaker of today's evening, Mr. Panchanan Sahu sir. Thank you, sir. Thank you for being with us. This is the 91st National Webinar. I'm going to present this small memento to our sir, Mr. Sahu, on behalf of principal staff and all the participants of webinar, 91st webinar. Maharshi Degree College and all the participants takes enormous pleasure to exalt this scrupulous personality who has been an epitome of humanitarian forbearance, being an iconic writer, editor, prabhachak of our state with national deputy. You have been a persistent source of pride and glory to our motherland. Sir, you have set an example, outstanding personality among the intellectuals all over the country by your virtues. The Maharshi Degree College team regards you as a role model. Thank you, sir. Again, we'll join very soon. We'll see your books which you have been written, and we'll be happy and we'll be very grateful if one copy will be sent to us or will be given to us so that we'll go through it. Thank you, sir. Now, I'm going to close the recording and we can have a photograph also